ढाका में पूर्व मिस अर्थ बांग्लादेश के साथ एक डेंजरस सीन हो गया। लेट नाइट ढाका पुलिस इस हीरोइन के घर में जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर दाखिल हो गई और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। लेकिन उससे पहले इस हीरोइन ने अपना फेसबुक लाइव ऑन करके ढाका पुलिस का पूरा कारनामा दुनिया के सामने उजागर कर दिया। हद तो यह थे कि 24 घंटे तक पुलिस ने स्वीकार ही नहीं किया कि इस हीरोइन को उसने गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर दबाव बढ़ा तो स्वीकार करना पड़ा। मोहम्मद यूनुस की सरकार उस पर देशद्रोहियों वाले कानून के तहत केस दर्ज कर रही है, लेकिन ऐसा क्यों है? हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। Oh my God! Are you seriously from police? Why are you doing this? আমার ফোন ল্যাপটপ সব প্রমাণ তারা নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। আমার ফোন ল্যাপটপ সব প্রমাণ নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। আমার ফোন ল্যাপটপ কে আমি बांग्लादेश की पुलिस एक फीमेल मॉडल और एक्टर से इतना क्यों डरी कि आधी रात को दरवाजा तोड़कर उसके घर में घुस गई। बांग्लादेश की पुलिस ने देशद्रोहियों पर लगाए जाने वाले कानून को एक महिला मॉडल के खिलाफ क्यों लगा दिया? बांग्लादेश की पुलिस की हरकतों को मॉडल ने फेसबुक पर लाइव करके पूरी दुनिया को क्यों दिखाया? আপনারা দরজা ভেঙে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। যেখানে আমি বললাম, প্রথমে আপনি বললেন কি বার্থ সার্টিফিকেট খোঁজ নিতে আসছেন। প্রথমে বললেন যে আপনি বার্থ সার্টিফিকেট এগুলো নিয়ে কথা বলতেছেন। আপনি মিথ্যা বললেন কেন? আপনি পুলিশ হলে না, আমি এখানে এতগুলো লোকের সাথে আমি ঠিকমতো জামা কাপড় পর্যন্ত পরা না, আমি প্রস্তুত না। আমি এতগুলো লোকের সাথে আপনি বললেই কেন কথা বলবো? बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ है। एक महिला मॉडल और एक्ट्रेस की गिरफ्तारी ने नौबत यहां तक ला दी है कि सऊदी अरब से कूटनीतिक संबंध खराब हो सकते हैं। हालात इतने खराब हुए हैं कि इस मॉडल को गिरफ्तार करने के लिए बांग्लादेश की पुलिस आधी रात को ही उसके घर पहुंच गई। गुंडागर्दी से घर में घुसी, फिर पकड़कर ऐसे ले गई कि पूरे 24 घंटे तक बांग्लादेश में मॉडल के अगवा होने का हल्ला हो गया। लेकिन ये पूरा मामला है क्या और ये मॉडल कौन है? ये बांग्लादेश की मॉडल और एक्ट्रेस मेघना आलम है, जो 2020 में मिस अर्थ बांग्लादेश भी रह चुकी हैं। मेघना आलम ढाका के सोशल सर्कल में एक बड़ा नाम है, बड़ी सेलिब्रिटी मानी जाती हैं, बांग्लादेश की एक बड़ी सोशलाइट है। पिछले हफ्ते बुधवार को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस रात को अचानक से उनके घर में घुस गई। पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में थे तो मेघना ने पूरी घटना का फेसबुक लाइव करना शुरू कर दिया। আমার বাসায় কিছু মানুষ আক্রমণ করেছে, তারা নিজেদেরকে পুলিশ পরিচয় দিচ্ছে। আমি বলেছি যে আমি থানায় এসে কথা বলবো, তারা কিন্তু আমার কথাটা শুনছে না। আমার বাবা মা যেখানে যে আছেন, আমি প্রস্তুত না, আমি ঠিকভাবে জামা কাপড় পরা না, ঠিক আছে? ঠিকভাবে আমি এখন পর্যন্ত প্রস্তুত না, আমি জামা কাপড় পরা না, আমাকে এখানে বেল দিয়ে যাচ্ছে, আমার দরজা প্রচন্ড পরিমাণে নক করছে। আমি তাদেরকে বলছি যে আপনারা যদি থানা থেকে হয়ে থাকেন কোনো চিন্তা নেই, তো আমি নিজে থানায় এসে কথা বলবো, ঠিক আছে? কিন্তু তারা যে কারণে এসেছে সেটা হচ্ছে আমাকে একটা বিপদে ফেলা। আমি জানি না, হাতে বন্দুক আছে তাদের, বাইরে পরিচয় দিচ্ছে হচ্ছে পুলিশ, কিন্তু আমি কিন্তু বললাম যে আমি নিজে ভাটারা থানায় এসে কথা বলবো। তাহলে তো আসলে নক করার কিছু নেই, তাই না? मेघना अपनी बातें फेसबुक लाइव के जरिए कह रही थी और बाहर से पुलिस वाले उनका दरवाजा पीट रहे थे। मेघना लगातार ये बातें भी फेसबुक लाइव पर आकर बता रही थी और वो पुलिस वालों से बंद दरवाजे से ही बात कर रही थी। শুনুন, আপনি আমার দরজা ভাঙার চেষ্টা করছেন, আমার তো ভয় পাওয়া তো স্বাভাবিক, তাই না? না না, আমি তো খুলতে পারি না, কারণ আপনি কেন ট্রাস্ট করবো আপনাদেরকে? আমার কাছে অলরেডি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফোন এসেছে, অলরেডি সিটি কর্পোরেশন থেকে ফোন এসেছে, অলরেডি 3 জন মানুষকে আপনারা থানায় আটকে রেখেছেন। আমার তো আপনাকে ট্রাস্ট করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আমি নিজে আমার লয়ারের সাথে আসবো, আমি আইনজীবী নিয়ে আসবো, এখন আমার পক্ষে সম্ভব না। इसी बीच मेघना ने इस पूरी घटना के लिए किसी एम्बेसडर ईसा को जिम्मेदार बताना शुरू किया और कहा कि अगर उसे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार एम्बेसडर ईसा ही होगा। Guys, please spread the lies. Keep it as proof, okay? Keep it as proof. Keep it as proof. If something happens to me, Ambassador Isa is responsible for this. আমার লয়ার যে আছেন, প্লিজ এই লাইভটা দেখে এখনই আপনারা ব্যবস্থা নেন যাতে সৌদি সরকারের কাছে এটার নামে কমপ্লেইন যায়। বাংলাদেশি লয়ে এরকম সিচুয়েশনের পরে কিন্তু সে আর ইমিউন থাকে না। अब सवाल यह है कि कौन है ये एम्बेसडर ईसा जिसका नाम मेघना ने लिया और इसका मेघना से क्या कनेक्शन है? असल में बांग्लादेश में सऊदी अरब के एम्बेसडर का नाम है यूसुफ ईसा अल दुहाइलान। इस पूरे घटनाक्रम से पहले
मेघना ने सोशल मीडिया पर ही सऊदी अरब के डिप्लोमेट के साथ अपने संबंधों का खुलासा किया था। मेघना ने आरोप लगाया था कि सऊदी एम्बेसडर इस पूरे केस में उसकी आवाज दबाना चाहते हैं और उसे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। मेघना के पिता के मुताबिक उनकी बेटी सऊदी डिप्लोमेट के साथ पिछले कई महीने से एक रिलेशनशिप में है, लेकिन हाल ही में उसे पता चला कि इस सऊदी एम्बेसडर की पहले से पत्नी और बच्चे हैं, जिसके बाद उनकी बेटी ने इस सऊदी डिप्लोमेट से रिश्ता तोड़ दिया। ये भी कहा जा रहा है कि मेघना आलम ने इस पूरे केस में सऊदी राजनयिक को माफी मांगने को कहा था, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। तो इसके बाद मेघना आलम ने पूरा रिलेशनशिप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और इसी के बाद बांग्लादेश की पुलिस ने कार्रवाई की। দেখুন এখন বলছে আমার বাসায় নাকি মাদক আছে, আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। আমি জীবনে কোনোদিন আমার যাকে চিনে আমাকে সবাই জানে, ঈসা নিজে পর্যন্ত জানে আমি কোনোদিন আজ পর্যন্ত মদ হোক সিগারেট হোক কোনো কিছু মুখে পর্যন্ত লাগাইনি। আমাকে মাদক মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। लेकिन इस केस में बांग्लादेश की पुलिस का दूसरा पक्ष है, जिसके आधार पर मेघना आलम की गिरफ्तारी हुई है। ढाका पुलिस ने 58 साल के दीवान समीर नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है, जो कवाई ग्रुप का सीईओ है। आरोप है कि वो सऊदी डिप्लोमेट को किसी महिला के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था। ये आरोप लगाया गया है कि यह शख्स हनी ट्रैप का एक रैकेट चला रहा था और इसी के जरिए उसने सऊदी एम्बेसडर ईसा बिन यूसुफ अल दुहाइलान से $5 मिलियन की एक्सटॉर्शन मनी मांगी। समीर दीवान को मेघना का साथी बताया गया है। आरोप है कि इसी के बाद सऊदी एम्बेसडर ने इस केस की शिकायत बांग्लादेश के गृह मंत्रालय में की और फिर यह पूरा एक्शन हुआ, जिसमें मेघना की गिरफ्तारी हुई है। Can you please send somebody to my house? There are some people from Bhatara Thana at my house. They're trying to break in. Can you do something immediately? They are trying to open my door. They don't have a search warrant. In fact, there is no legal complaint on me ever. But they're here at my door. They're trying to break in. Can you send somebody right now? Ma'am, please. लेकिन यह पूरा केस महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मेघना की गिरफ्तारी बांग्लादेश की पुलिस ने उस कानून के तहत की है जो देशद्रोहियों पर लगाया जाता है। यह स्पेशल पावर्स एक्ट 1974 एक काला कानून बताया जाता है, जिसमें यह प्रावधान है कि लोगों को बिना किसी ट्रायल के कितने भी लंबे वक्त तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। प्रावधान है कि यह एक्ट तब लगाया जाता है जब किसी शख्स से राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर का खतरा हो या समुदायों के बीच में नफरत फैलाने का मामला हो, किसी ने अगर जरूरी सेवाओं को बाधित किया हो, डर या भय फैलाया हो, देश के आर्थिक और वित्तीय हितों को नुकसान पहुंचाया हो, तो ये एक्ट लगाया जाता है और इसी कानून के तहत मेघना की गिरफ्तारी की गई है। इसके बाद ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मेघना को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो महत्वपूर्ण लोगों के बारे में झूठी बातें फैलाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को खराब करना चाहती थी और देश को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहती थी। इस पूरे केस में सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे 24 घंटे तक पुलिस ने मेघना आलम की गिरफ्तारी की घटना को स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन जब लगातार सोशल मीडिया पर दबाव बढ़ने लगा तो फिर मजबूरी में मेघना आलम की गिरफ्तारी को स्वीकार करना पड़ा और अब तो मेघना को सीधे 30 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।